Hello everyone, good morning. This is Kulra Singh, lecturer, Civil Engineering Department, Gurnaang Polytechnic College. So we will continue the topic properties of fluids today. We have discussed so many properties earlier in the previous video in part 1 and part 2. Now we will continue the same topic. This is the last session and this is part 3, properties of fluid. So let us start without wasting any time. So rest of the properties of fluid which I didn't explain in the earlier sections are vapor pressure, cohesion, adhesion, surface tension, capillarity, compressibility. So these are the properties of fluid which I haven't discussed till now. The properties that we have discussed till now are density, specific weight, specific gravity, specific volume, and I think there is one more properties you know very well. So let us continue. First is vapor pressure. So what is vapor pressure? Vapor pressure क्या होता है? All liquids have tendency to vaporize or evaporate. What it means कि सभी जो तरल पदार्थ हैं, तरल के रूप में जो पदार्थ एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, they all have tendency to vaporize or evaporate. I think you all know the meaning of vaporize or evaporate. Evaporate क्या होता है कि जब सूरज की किरणें पड़ती हैं पानी पे तो वाटर क्या होता है, हमारा पानी इवेपोरेट होता है. तो दैट इज इवेपोरेशन. क्लियर? वो भाप बन जाता है, दैट इज इवेपोरेशन. वेपोराइजेशन क्या होता है कि उसके छोटे छोटे वेपर बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं या छोटी छोटी बूंदें बन जाती है जो इन द फॉर्म ऑफ इन विच फॉर्म द वाटर इवेपोरेट, दैट इज वेपर. क्लियर? When evaporation of liquid takes place in a closed container, the vapor molecules exert a partial pressure on the free liquid surfaces. This partial pressure is known as vapor pressure. क्या मतलब है इसका कि जब कोई मेरा तरल पदार्थ इवेपोरेट होता है इन अ क्लोज्ड कंटेनर, किसी बंद बर्तन में, बर्तन या सांचा कुछ भी कह लो, वो बंद है, उसमें हम जब पानी इवेपोरेट करते हैं, उबालते हैं, जब बोल लीजिए आप, उसको हीट करते हैं तो लिक्विड जो है, या पानी इज नॉट ओनली द लिक्विड, आई एम जस्ट रिपीटिंग द वर्ड पानी कैजुअली, इट कैन बी एनी तरल पदार्थ, एनी लिक्विड. तो जब किसी क्लोज कंटेनर में कोई लिक्विड डाला जाता है और उसको हीट किया जाता है और उसकी इवेपोरेशन होती है, तो जो वेपर्स होते हैं वो जो फ्री सरफेस होती है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज फ्री सरफेस. इट इज द सरफेस विच सेपरेट द लिक्विड फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट. तो उस फ्री सरफेस पे जो वेपर्स होते हैं वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, पार्शियल प्रेशर. दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर. नेक्स्ट इज कोहेजन. व्हाट इज कोहेजन? Cohesion means force of attraction between molecules of the same liquid. The force of cohesion is negligible in case of gases. What is cohesion? Force जो cohesion होती है वो क्या होती है कि कोई भी मेरा मटेरियल है, it can be liquid, fluid और gas और solid. जब किसी भी मटेरियल के, किसी भी पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस की जो अट्रैक्शन है, दैट इज कोहेजन. इट इज़ मोर इन केस ऑफ लिक्विड. जो तरल पदार्थ हैं उनके केसेस में जो कोहेजन है वो ज़्यादा है, और गैसेस के केसेस में क्या है, ये कोहेजन कम है. क्लियर? कोहेजन इज सिंपली द अट्रैक्शन ऑफ molecule of same substance. If a if a material is so dense, density is high, like solids have high cohesion. They have high attraction of molecules between them. Clear? If some material is loose, like you can say cotton have less cohesion. Clear?
अब कोई भी सॉलिड कोई पदार्थ है, जैसे लकड़ी ले लीजिए, आप लकड़ी को अपने हाथ से उखाड़ नहीं सकते अप टू सर्टेन लिमिट। अगर उसकी थिकनेस बहुत कम है तो उखाड़ सकते हैं, अगर बड़े पेड़ की बात करूं तो आप उसको उखाड़ नहीं सकते अपने हाथों से। तो वाई दैट इज बिकॉज उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और एट द सेम टाइम अगर मैं कॉटन ले लूँ तो कॉटन जितनी मर्जी ज़्यादा हो मैं उसको अपने हाथ से उखाड़ सकता हूँ। क्लियर? तो due to cohesion, let us continue. Due to cohesion, the liquid has tendency to remain as one assemblage of particles. That is, it remains a continuous mass. First point. Second point, the liquid can resist a small amount of tensile stresses. So what it means कि जो हमारे तरल पदार्थ हैं, ड्यू टू कोहेजन क्या है, उनकी जो टेंडेंसी है टू रिमेन एज वन असेंबलेज, दैट इज मोर। लिक्विड जो होता है कि लिक्विड को अगर मैं किसी भी बर्तन में डाल दूं तो भी उसका उतना ही मास लगेगा अगर उसको मैं किसी और बर्तन में डाल दूं। सपोज आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर मैं उसको एम्प्टी कर दूं जग में, ठीक है, विद नो नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ, आप अज्यूम कर लीजिए कि जब मैंने ग्लास को जग में डाला तो मतलब नॉट अ सिंगल ड्रॉप लेफ्ट इन द ग्लास, अगर मैं उसको उस डाल देता हूँ तो उसका सेम वॉल्यूम रहता है। क्लियर? उसका वॉल्यूम सेम रहता है, वो एज ए सिंगल यूनिट ही एक्ट करती है लिक्विड, चाहे मैं उसे किसी भी बर्तन में डाल दूँ। क्लियर? शेप चेंज हो जाती है बट वॉल्यूम चेंज नहीं होता। सेकेंड पॉइंट क्या है, liquid can resist a small amount of tensile stresses because of cohesion. They can resist a small amount of tensile stresses. Liquid. Clear? Next, adhesion. Adhesion means force of attraction between molecules of a liquid and the molecules of a solid boundary surface in contact with the liquid. So what is adhesion? It is not, you can say, opposite. What is cohesion? It is the force of attraction of the molecule of same material or same substance. And what is adhesion? It is the force of attraction between the molecules of different substance. जैसे अगर मैं कोहेजन की बात करूँ, मैंने पानी ले लिया, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स के आपस में जो अट्रैक्शन है दैट इज कोहेजन। अगर पानी को मैं किसी बर्तन में डाल दूँ तो उसके साथ जो उसकी अट्रैक्शन होगी पानी के मॉलिक्यूल्स की, किसी जैसे मैंने ग्लास में डाल दिया सपोज, क्लियर, स्टील का हो चाहे ग्लास का हो कांच का हो, सपोज स्टील के ग्लास में डाल दिया तो स्टील के ग्लास की जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टील के ग्लास के, उनकी जो अट्रैक्शन होगी विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पानी के मॉलिक्यूल से जो उसकी अट्रैक्शन होगी दैट इज एडहेजन। क्लियर? कोहेजन में सेम, सी one thing is common in cohesion and adhesion, that is it is a force of attraction between molecules. in case of cohesion के केस में क्या है कि जो अट्रैक्शन है वो सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स में है, एंड एडहेजन के केस में क्या है, द अट्रैक्शन इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। क्लियर? So it hasn't clear. Due to this property, a liquid wets a body which comes into contact with it. Adhesive force helps us to write on the paper with ink. क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी के कारण जो लिक्विड है एडहेजन के कारण वो किसी दूसरी बॉडी को गीला कर देता है, वेट कर देता है, उसके साथ चिपक जाता है। ठीक है? एडहेजन का जैसे अगर आप, मैंने पानी को डाला ग्लास में और उसको मैं खाली करूँगा बर्तन में तो कुछ ड्रॉप्स उसकी रह जाती हैं ग्लास की सरफेस पे। वाई इट इज़ सो? बिकॉज इट हैज़ सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लास। क्लियर? अगर आप सेम मरकरी डालो, मरकरी को ग्लास में डालो, उसको खाली करो किसी और बर्तन में, नॉट अ सिंगल ड्रॉप विल लेफ्ट इन द ग्लास बिकॉज मरकरी हैज force of attraction of its molecule more than the molecules of other material. सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो मरकरी है उसकी आपसी जो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं मरकरी के, उनकी जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स में से अट्रैक्शन है उससे। और सिंगल लाइन में बोलूँ तो मरकरी की कोहेजन एडहेजन से ज़्यादा है। क्लियर? What? Third point, water wets glass because the force of adhesion between the molecules of water and the glass is stronger than the force of cohesion between water molecules. Mercury does not wet glass because the force of cohesion between mercury molecules is
stronger than the force of adhesion between the molecules of glass and mercury. Clear? Let me simplify it. कि क्या है इस पॉइंट में कि जो वाटर है, let me draw it. Share whiteboard. सपोज एक ये कंटेनर है, let me use different colors. Black is okay. Suppose this is a container and this is also a container. Clear? In the first container there is water, and in the second container there is mercury. Clear? इसमें molecules बना देता हूँ मैं. I will show you molecules. Suppose these are the molecules of water. जब आप वाटर को, पानी को किसी कंटेनर में डालते हैं वो ऐसा नहीं दिखता. आई एम जस्ट, यू कैन अज्यूम इट अ मैग्नीफाइड व्यू. कोई भी चीज़ है उसकी कोई भी चाहे लिक्विड है या सॉलिड है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, दैट इज़ मॉलिक्यूल्स. तो आप इसे मॉलिक्यूल्स कंसीडर कीजिए. ये जो छोटे छोटे डॉट्स बनाए हैं मैंने, एंड दीज रेड पिंकिश डॉट्स आर मरकरी. क्लियर? सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट कि जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी आपस की अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू, लेट मी राइट हियर, so what I want to explain is that in case of water, cohesion is less than adhesion, and in case of mercury, cohesion is more than adhesion. So I explained you what is cohesion and adhesion. Cohesion क्या होती है कि खुद के कोई मटेरियल है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस की जो अट्रैक्शन है, दैट इज कोहेजन. अगर मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स की इस ब्लैक कंटेनर से जो अट्रैक्शन है, दैट इज एडहेजन. क्लियर? सो क्यों पानी, कोई भी लिक्विड अगर किसी कंटेनर से चिपकता है, वो क्यों चिपकता है? क्योंकि उसकी एडहेजन ज़्यादा होती है कोहेजन से. क्लियर? अगर देर इज नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ any liquid on the container, it means that liquid have more cohesion. Clear? So जो पानी की बूंदें ग्लास से चिपक जाती हैं जब हम ग्लास को खाली करते हैं किसी जग में, तो वो किसकी वजह से होती है? एडहेजन की वजह से. अगर मैं मरकरी को खाली कर दूं ग्लास में डालकर, तो सेम क्या होगा कि उस पर एक ड्रॉप भी नहीं रहेगी. Clear? I think that explanation is more than enough.